Hello viewers, hi, I am Narendu Kant, your trainer. My dear viewers, in the last and previous video lecture, we have opened the next new chapter of grammar, that is future time references. In the course of the session, we also knew its detailed and elaborate definition. And towards the end of the session, we also were acquainted with those 6 important structures that are essential for using future time references in our personal languages with all confidence and comfort. Here, in this very regard, one question must rise in your mind, that what the importance of knowing this very chapter is, or why we should know this very chapter of future time references, or what is its practical importance, or isn't it sufficient to know only tenses and sentences in English grammar? These questions must haunt your mind, my dear viewers. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ग्रामर की नई चैप्टर फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस को इंट्रोड्यूस किया, ओपन किया। पूरे वीडियो लेक्चर के सेशन में इसके बाद हम लोगों ने फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस को डिटेल्ड वे में और इलेबोरेट वे में डिफाइन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और फिर सेशन के लास्ट में हम लोगों ने उन 6 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को भी जाना जिन स्ट्रक्चर्स को जानना इम्पॉर्टेंट है अगर आप फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस से रिलेटेड लैंग्वेज में उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। उन 6 स्ट्रक्चर्स को भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, एक्वेंटेड हम लोग उससे हुए। लेकिन इन सारी डिस्कशंस से रिलेटेड इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूरी ही बनने चाहिए कि ग्रामर में फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये सारे कुछ सवाल है। क्या इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस और सेंटेंसेस इन दोनों चैप्टर्स को जान लेना ही काफी नहीं है? The only purpose of today's video is to acquaint you all viewers the importance and practical applications of this chapter, which will disclose the very fact why it is important to know future time references in addition to those tenses and sentences. ओके, इस वीडियो लेक्चर का एक ही पर्पस है, आप सारे व्यूअर्स को इस फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, आप सारे व्यूअर्स को इस फैक्ट्स की जानकारी देने का कि ग्रामर में टेंसेस और सेंटेंसेस इन 2 बड़ी चैप्टर को जान लेने के बाद इसे जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मेरी पूरी एफर्ट्स होंगी आपके दिमाग में इस मेजर फैक्ट को इम्बाइब करने का, उसे डालने का कि व्हाई वी शुड आफ्टर ऑल नो दिस वेरी चैप्टर, दैट इज फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस। माय डियर व्यूअर्स, practically and usually we know that we are always sure and certain about the present and the past also, and various general facts related to them. In this very regard,
knowing those four forms and their related four structures for present tense, and also knowing those four forms and their respective four structures of past tense are sufficient to express everything whatever we mean to say and speak and write in English language, both in present tense and past tense. However, we can never be sure and certain about the future, because future is just unpredictable, unimaginable and unknown. So it is very hard to keep the future course of action within some boundary line, within some grammatical boundary line. It must have much more freedom and liberty to enjoy than those present tense and past tense. Since present tense and past tense are fixed, stable and non-variant, against it, future tense is just unimaginable, unpredictable, unknown and also not fixed, not limited and unstable or instable. ओके, अब यहाँ एक टेक्निकल इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका ध्यान एक क्रूशियल जो टेक्निकल पॉइंट है उस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स ये बात तो जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो दोनों बिल्कुल फिक्स्ड हैं, स्टेबल हैं, नॉन वेरिएंट हैं। प्रेजेंट में जो चीजें करनी है, जो कर रहे हैं। पास्ट टेंस में हमने जो किया सो किया, यानी प्रेजेंट और पास्ट अनचेंजेबल है, वो फिक्स्ड है, स्टेबल है। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ सो हुआ, ये पास्ट की बात हो गई। प्रेजेंट में हमें स्कूल जाना है तो जाना है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। तो यहां टेक्निकलिटी ये है कि प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों के लिए हम बिल्कुल श्योर होते हैं, सर्टेन होते हैं कि इसलिए क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट फिक्स्ड हैं, स्टेबल हैं, नॉन वेरिएंट हैं, वो बदल नहीं सकते, वो अनचेंजेबल है। लेकिन इसके विपरीत चूंकि फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस या फ्यूचर की कोई बात, जिस फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं कि कल क्या होगा, वो फ्यूचर इन शॉर्ट हर कोई जानते हैं कि वो अननोन है। कल का फ्यूचर अननोन है, कल का फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते ये होगा और वो नहीं होगा। फ्यूचर इस तरह अननोन है, अनप्रेडिक्टेबल है और अनइमेजिनेबल है। हम उसके बारे में पहले से कोई कल्पना निश्चित तौर से नहीं कर सकते। इसलिए प्रेजेंट और पास्ट के अगेंस्ट में फ्यूचर वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। वो नॉन वेरिएंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा, वो अनफिक्स्ड होगा, वो इनस्टेबल होगा, वो अस्थायी नहीं हो सकता, वो अस्थायी होगा, परिवर्तनशील होगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड नेचर ऑफ फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम, we can never be sure and certain about this, and we have got many different ways to express
anything we mean to speak and write in future tense. We have got a number of structures which we had already discussed in the previous video. अब फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम जो भी होता हो उसकी यही विशेषता जो काफी विशिष्ट है, उसके इसी विशिष्ट स्वभाव और फ्यूचर टेंस और टाइम के इसी विशिष्ट चरित्र के कारण हम फ्यूचर टाइम के बारे में श्योर नहीं हो सकते, सर्टेन नहीं हो सकते, अनलाइक दोज प्रेजेंट एंड पास्ट। और यही कारण है कि हम फ्यूचर टाइम के बारे में फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो भी चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं हमारे पास काफी फ्रीडम होती हैं, लिबर्टी होती हैं, अपनी अपनी स्टाइल्स, अपनी अपनी मैनर्स और वेज में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने पहले भी कहा जहां 4 फॉर्म्स और 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए, पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जहां टेंस बेसिस पे 4 फॉर्म्स और 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए, वहीं फ्यूचर टाइम की घटनाओं को भी एक्सप्रेस करने के लिए, उसके एक्शन को भी एक्सप्रेस करने के लिए टेबल में बाउंड करके, टेंस के टेबल में बाउंड करके 4 फॉर्म्स और 4 स्ट्रक्चर्स तो दिए गए, लेकिन फ्यूचर का स्पेस और उसका एरिया इतना ज्यादा वाइडर है कि हम फ्यूचर टाइम की किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए उसके 4 फॉर्म्स और 4 स्ट्रक्चर्स तक ही हम अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हम लोगों के पास ढेर सारे उसके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं फ्यूचर टाइम की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। माय डियर व्यूअर्स, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस आई हैव जस्ट डिस्कस्ड in this video lecture, and this is the practical application of future time references you must know, you must feel and use also in your personal and practical language ahead. Future time references के क्या importance है, इसके क्या practical application होते हैं, ये हमारी practical life से कितना जुड़ा हुआ है, connected है, इसके बारे में हमने आज पूरी तौर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा थी। और इस फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस को एक ग्रामर का एक एसेंशियल एलिमेंट के रूप में कंसीडर करते हुए जितने स्ट्रक्चर्स दिए उन सारी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप पर्सनल इंग्लिश लैंग्वेज में मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करें सो दैट यू कैन डेवलप मोर एंड मोर confidence. My dear viewers, the more you learn, the more you have satisfaction, the more you practice hard, the more you have perfection. In order to have both satisfaction and perfection, you now need to buy and get my own book, that is Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant, published by Blue Rose Publishers, that is now available on Google Play Books in digital format with 50% bonanza discount offer just for you. After lockdown, you can also buy and get my book in physical format, in textbook format from Amazon, Flipkart, Snapdeal and Blue Rose stores, enjoying even there just 12% instant discount offer. मेरी बुक आप खरीदें, अवश्य ही खरीदें और बुक को खरीदने के बाद एक अपने उस वैल्यूएबल पोजीशन के लिए प्राउड फील करें, डिफरेंस महसूस करें। My dear viewers, if you consider the content of the video of the day quite interesting, educational, informative, amazing and different from others, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video
And please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning further. Have the nice time.